Good morning to everyone. Today we will start with the hire purchase problems. Last lecture I have discussed with the journal entries in the hire purchase of hirer, who is the hire purchaser, and vendor, who is the seller, vendor, who is the seller. So this hire purchase is an agreement between two parties who wish to purchase and sell. The hire purchaser wants to purchase and the vendor wants to sell his goods on hire purchase basis. Hire purchase basis means on installment basis, which the procedure and everything I have discussed in the last lecture. We have also discussed the journal entries. If anyone have missed this lecture, you can find you can find this lecture in my YouTube channel. You can go there and you can see the lecture, watch the lecture. Now today we will start with the practical sums. So let us go to the first sum which we will be doing today. The purchase price of a motor car purchased by Carmart Company on hire purchase from Auto Riders Company is rupees 37,250. So the purchase price here refers to cash price. Purchase price means cash price. Cash price means original cost of the asset. If I make the full payment today, if I make the full payment of the motor car today, I will have to pay the cash price of rupees 37,250. No interest will be charged. When you make the payment of the motor car on the same day, you will not have to pay any interest, any additional charges. So the amount which does not include any interest, the original cost of the asset is known as cash price. It is 37,250. And there are two parties in the hire purchase agreement. One is the buyer. Buyer को हम बोलते हैं hire purchaser और hirer. तो ये क्वेश्चन में हायरर कौन है? कैन एनीवन टेल मी हु इज द हायरर एंड हु इज द हायर वेंडर? कौन खरीद रहा है? हु परचेसेस इज द हायरर एंड हु सेल्स इज द vendor or the higher vendor. Now, can you give this answer in this question? Who is the hirer and who is the vendor? The one who is purchasing the motor car, that is Carmart Company, is the hirer, and the one who sells the motor car, that is Auto Rider Company, is the vendor. जो चीज को बेचता है, सेल करता है, उसको सेलर या वेंडर बोलते हैं. एंड जो खरीद रहा है, परचेस कर रहा है, उसको हम हायरर या हायर परचेसर बोलते हैं. तो ये क्वेश्चन में कारमार्ट इज द हायरर एंड ऑटो राइडर कंपनी इज द वेंडर. So it is available on hire purchase on the following terms. Initial amount payable is rupees 10,000. So can anyone tell me इनिशियल अमाउंट पेएबल मतलब क्या? जिस दिन कारमार्ट कंपनी मोटर कार खरीदेगी तो मोटर कार का प्राइस है 37,250. तो हायर परचेस में हम जब भी परचेस करते हैं तो जो फर्स्ट पेमेंट करते हैं, इनिशियल पेमेंट करते हैं ऑन द डे ऑफ द परचेस, इट इज नोन एज डाउन पेमेंट. जो हम पहला पेमेंट करते हैं ऑन द डे ऑफ द परचेस इज नोन एज डाउन पेमेंट. तो ये क्वेश्चन में कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट कितना है?
Can anyone tell me the initial amount payable rupees 10,000 is called as the down payment. So the down payment is 10,000. जो हम फर्स्ट पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट करने के बाद यू कैन टेक द मोटर कार टू योर होम. दैट amount is known as the first payment, the initial payment, which does not include any interest. Down payment में कभी भी interest included नहीं रहता. So that is known as initial payment or the down payment. In this question, the down payment is 10,000. And how much interest is charged? The rate of interest is 5%, and the total amount of interest is 2750 at the rate of 5%. At the rate of 5%. Third one, balance amount is payable in 3 installment of ₹10 each. पहले 10,000 दिया, वो डाउन पेमेंट है. उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं 10,000 का. उसके बाद कितना इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं? 3 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं 10,000 का. 3 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं 10,000 का. How many installment? 3 installment is to be paid of rupees. 3 installment is to be paid of rupees 10,000. स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट 10,000 का है, फिर 3 इंस्टॉलमेंट 10,000 का है, तो ये सबको ऐड करने के बाद 40,000 होता है. लेकिन द कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार इज 37,250, but we are paying 10,000 as down payment, and 3 installment of 10,000 is 3 into 10,000 is 30,000. So that comes to total of 40,000. तो कार सिर्फ 37,250 का है, हम दे रहे हैं 40,000. सो जो हम एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं 40,000 माइनस 37,250, 40,000 माइनस 37,250 करो. 40,000 देंगे डाउन पेमेंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 is 40,000, but the car is of 37,250. So 37,250 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 2750, विच इज नथिंग बट हमारा इंटरेस्ट. तो हम जब भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 10,000 का, तो वो 10,000 में 5% का इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा. वो 10,000 में 5% का इंटरेस्ट. सो this down payment does not include any interest, but the other installment may or may not include interest. So हमें एक और चीज बोला है, charge depreciation at 10% per annum under straight line method. मतलब हम जो कार खरीद रहा है, so that is CarMart company, उनको they feel that the value of their car will be depreciated. Depreciate मतलब reduce होना. कितना परसेंट में रिड्यूस होने वाला है? 10% में. कितना परसेंट में रिड्यूस होने वाला है? 10% में. एंड अंडर व्हाट मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड में हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, एंड एक और नाम है इसका, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. So straight line method is also called as original cost method. इसमें हम हमेशा original cost के ऊपर depreciation निकालते हैं, and the amount of depreciation is fixed.
नॉर्मली हम सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन बोल के रिड्यूस करते हैं, इतना वैल्यू असेट का कम हुआ. सो लेट अस स्टार्ट दिस सम. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो टोटल इंटरेस्ट पता है, बट एवरी ईयर हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे दैट वी डोंट नो. सो वी हैव टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. आप तो बोलोगे इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया है 2750, बट दैट इज द टोटल इंटरेस्ट. वी वुड लाइक टू नो दैट ईच ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया. वी वुड लाइक टू नो दैट ईच ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया. वी वुड लाइक टू नो दैट ईच ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया. So let us prepare a column interest के लिए. यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं दिया, सो एक कॉलम हम डेट के लिए बनाते हैं. सेकेंड कॉलम कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, बैलेंस, कैश प्राइस एंड डेप्रिसिएशन. सो डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, बैलेंस, कैश प्राइस, and last one depreciation. So date is not given in this question. यहाँ पे नहीं दिया है. Is it given that when did we purchase on what date have we purchased the, is it given? Let us take it here. On 1st January 2011 ईच इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे? ऑन 31st December every year. So let us read the first line. The purchase price of the motor car purchased by Carmart. Carmart is the buyer or the hirer on hire purchase from Auto Rider. Auto Rider is the vendor जिसने कार बेचा है. कितने में? कार कितने का है? 37,250 ऑन 1st January 2011. तो 1st January 2011 को हमने क्या किया? कार खरीदा. अब जिस दिन कार खरीदा उसी दिन कुछ पेमेंट किया है क्या? टेल मी. हमने तो हायर परचेस में कार खरीदा, तो हम पूरा पैसा कार का एक ही बार में नहीं पे करेंगे. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कार? इट इज 37,250. But we will not pay the whole amount at once. Then it will not be hire purchase basis. Hire purchase means हम पीसेस में पैसा पे करते हैं, हम इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हैं. तो टेल मी 1st Jan 2011 को क्या हमने कोई भी पैसा पे किया है? क्या हमने एक भी पैसा 1st Jan 2011 को पे किया है? लेट अस मेक अ अजम्पशन. Carmart company visits the Auto Riders company on 1st January 2011. उसके बाद वो क्या करता है? वो एक कार पसंद करता है. कार का वैल्यू है 37,250. तो वो ऑटो राइडर्स को बोलता है आई हैव लाइक दिस कार एंड मुझे ये खरीदना है, लेकिन मैं पैसे एक ही बार में नहीं पे कर सकता. आई वॉन्ट टू परचेज दिस कार ऑन हायर परचेज बेसिस. So the auto rider company, who is the vendor, who is the seller, says okay fine, you can do that,
वी विल साइन एन हायर परचेस एग्रीमेंट, और उसके हिसाब से आपको ये कार हायर परचेस में मिल जाएगा। लेकिन ये कार को लेके जाने के लिए आपको सबसे पहले डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक अ डाउन पेमेंट। तो जिस दिन कार को परचेस किया जा रहा है उसी दिन क्या करते हैं हम, 10,000 का डाउन पेमेंट करते हैं। तो दैट डाउन पेमेंट इज व्हाट, इट इज जो कार का ओरिजिनल कॉस्ट है 37,250, वो उसमें से हमने थोड़ा पैसा पे किया। व्हाट इज द डाउन पेमेंट, इट इज द इनिशियल पेमेंट ऑफ द असेट। तो हम जब भी सपोज यू वांट टू बाई, सपोज यू हैव टू बाई अ रेफ्रिजरेटर, तो तुमने रेफ्रिजरेटर लिया, वो 62,000 का है। तुमने शॉपकीपर को बोला, वेंडर को बोला, हायर परचेसर को बोला कि मेरे पास 62,000 एक साथ देने के लिए नहीं है, हम ये खरीद परचेस हायर परचेस बेसिस में करते हैं। तो द शॉपकीपर एंड द बायर will come to an agreement, and the shopkeeper says okay we can do that, but आपको थोड़ा पैसा तो अभी देना पड़ेगा, तभी आप ये फ्रिज को घर लेके जा सकते हो। तो ऑटो राइडर कंपनी ने भी बोला ये कार मोटर का 37,250 का है, लेकिन आपको थोड़ा पैसा तो देना होगा, तभी आप ये कार को घर लेके जा सकते हो। तो कितना पैसा दिया, 10,000। तो ये 10,000 में डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो सेम डे पेमेंट होता है। अगर आज के दिन तुम पूरा 37,250 दे दोगे तो तुमको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट कब चार्ज होता है, जब आप पैसा आज नहीं बट फ्यूचर में कोई डेट में दोगे। तो क्योंकि ऑटो राइडर कंपनी को वेट करना पड़ रहा है अपने पैसे मिलने के लिए, इसलिए ही हैज टू बी पेड इंटरेस्ट। मतलब व्हेन यू टेक अ लोन and when you return the money in the future, you are charged interest, that is the waiting charge। पैसा अगर आज के आज लेके आज के आज दे दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर कोई आवरली बेसिस में आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे तो वो अलग बात है। नॉर्मली इंटरेस्ट इज अ वेटिंग चार्ज, इंटरेस्ट इज अ वेटिंग फीस। आपको आज पैसा आपने दिया बट आप वो पैसा फ्यूचर में पे कर रहे हो, तो यू दैट फ्यूचर पीरियड में जब जिससे आपने पैसा लिया उसको वो पैसा उसके पास रहता, तो वो किधर ना किधर उसको यूज करता। अब वो नहीं कर पाया बिकॉज द मनी इज विथ यू। अगर आप ऑटो राइडर को आज ही पूरा 37,250 दे देते तो क्या होता, तो वो पैसे को किधर यूज करता। अब आप क्योंकि पेमेंट फ्यूचर में कर रहे हो, you have to also pay the waiting charge, you have to also pay the waiting charge, so that waiting charge is interest। so here installment कितना हुआ, इंस्टॉलमेंट इज मे और मे नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। तो ये डाउन पेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बैलेंस कैश प्राइस। द कार इज ऑफ 37,250, 10,000 पे कर दिया, तो हाउ मच इज द बैलेंस कैश प्राइस, 27,250। द बैलेंस कैश प्राइस इज 27,250। नाउ जिस दिन असेट खरीदते हैं उस दिन तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता। डिप्रिसिएशन कब होता है, ऑन ईयर एंड। डिप्रिसिएशन कब होता है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन कब होता है, ईयर जब एंड होगा तब। तो यहाँ पे फर्स्ट डे में कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं है। अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट डेट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट डेट। तो नेक्स्ट डेट क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि अभी 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब 1 जैन के बाद क्या आएगा, 1 जैन के बाद 31 जैन आएगा, 31 दिसंबर आएगा। 31 दिसंबर को 1 जैन के बाद 31 दिसंबर आएगा। 31 दिसंबर के दिन क्वेश्चन में बोला है 3 बार 10,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया है। सी
balance amount is payable in 3 installment of rupees 10,000 each. So 10,000 का 3 इंस्टॉलमेंट है. तो ये 10,000 में व्हाट इज देयर इज 5% का इंटरेस्ट ऑल्सो. तो हम लोग क्या करते हैं, 31/12/2011 के दिन जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट निकालते हैं. इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है, बैलेंस कैश प्राइस में. इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालना है, जो पैसा पे कर दिया उस पे नहीं, जो पैसा पे करना बाकी है हम उस पे निकालते हैं इंटरेस्ट. तो 5% इंटू जैन से दिसंबर कितना महीना होता है, 1 जैन से 31 दिसंबर इस 1 ईयर, 12/12. या फिर लिख सकते, करेक्ट. कितना आंसर आ रहा है, वेरी गुड. द आंसर इज कमिंग 1362.5. 0.5 मतलब 1263 करना पड़ेगा. 0.5 या उससे ज्यादा रहेगा तो हम एक डिजिट इंक्रीज करते हैं. तो ये हो जाएगा 1. इंटरेस्ट कितना हो गया, 1363. मतलब ये 10,000 में इंटरेस्ट कितना है, ये 10,000 में हाउ मच इज द इंटरेस्ट, 10,000 में इंटरेस्ट इज 1363. सो हाउ मच इज द कैश प्राइस, 10,000 में -1363 करो, -1363 करो, कितना होता है 10,000 में, 10,000 में -1363 करो, 8637. इट इज 8367. मतलब 10,000 का जो हमने इंस्टॉलमेंट पे किया उसमें इंटरेस्ट है 1363. तो कार के लिए कितना पैसा इंटरेस्ट, मतलब क्या, वेटिंग चार्ज, 1 साल रुकना पड़ा 10,000 के लिए, तो उस पे 5% का इंटरेस्ट इज 1363. तो रिमेनिंग इज फॉर द कार, रिमेनिंग इज फॉर द कार. तो 27,000 यहाँ पे भी बैलेंस कैश प्राइस निकालना है. 27,250 बचा था पे करने, क्योंकि 10,000 तो पहले ही पे कर चुके. तो 27,250 में आज कितना पे किया, 8637. तो अभी भी कितना बैलेंस है पे करना, 18,613. हाउ डिड आई गॉट दिस 18,613, 27,250 में 8637 पे किया. तो हाउ मच इज स्पेंडिंग, 18,613. और ईयर एंड में एक और चीज निकालना है, दैट इज डेप्रीसिएशन. ईयर 18,613 कैसे आया, 27,250 इज द बैलेंस कैश प्राइस. उसमें कितना कैश प्राइस आज पे किया है, 10,000 इज द इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट विल मे इंक्लूड इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस. सो इंटरेस्ट कितना हमने कैलकुलेट किया, 1363. और कैश प्राइस कितना है, कैसे पता चलेगा, 10,000 में से 1363 माइनस किया तो इट इज 8637. 8637. तो ये बैलेंस कैश प्राइस मतलब पहले तो 27,250 पे करना बाकी था, आज हमने कैश प्राइस का कितना पे कर दिया, 8637. सो अभी भी कितना बैलेंस है, 27,250 माइनस 8637 करो, you will get 18,613. You will get 18,613. 18,613 माइनस करो, you will get 18,613. नाउ ईयर एंड में डेप्रीसिएशन भी निकालना है. डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं. एंड व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, कैश प्राइस ऑफ द असेट, 37,250. कितना परसेंट डेप्रीसिएशन है, 10%. जैन से लेके दिसंबर इज हाउ मच, 12/12, 1 year. So how much will the 1 year depreciation come to? It will be 37
3725. It will be 3725. Now we will go to the next year. क्वेश्चन में बोला है इंस्टॉलमेंट हमेशा हमने परचेज कब किया, 1 जनवरी को। एक बार परचेज किया तो अभी उसका पूरा पैसा चुकाना है, तो सबसे पहले और पैसा 3 बार में चुका रहे। एक 31 दिसंबर हो गया, अब सेकेंड बार फिर से 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, फिर से 10,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे। 10,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे। ये 10,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा 5% गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ द डेट इज 31/12/2012। सॉरी ये डेट ईयर चेंज हो जाते हैं ना। 2012 31 दिसंबर 2011 के बाद 31 दिसंबर 2012 आएगा, तो इसमें हमें फिर से इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस कैश प्राइस, अभी भी कितना बैलेंस है पे करना, 18,613। 18,613 पे 5% फॉर 1 ईयर, दैट इज 12/12 कितना होता है, जस्ट कैलकुलेट। 18,613 में 5% इज 931, मतलब 10,000 में 931 is the interest and remaining will be the cash price. So minus करो 10,000 minus 931 कितना होता है, 9069। It is 9069। तो अभी कितना बैलेंस है, अभी कितना बैलेंस है, टेल मी। 18,613 बचा था पे करने और हमने 9069 पे कर दिया, तो अभी कितना बैलेंस है, 9544। ये 9544 कैसे मिला, ये मैं तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखती हूँ। 18,613 माइनस 9069, ये आंसर आया। तो यहाँ पे क्या था, 27,250 माइनस 8637, ये आंसर आया। और स्टार्टिंग में 27,250 कैसे आया, ओरिजिनल कॉस्ट था 37, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट वाज 37,250, जिसमें से हमने डाउन पेमेंट पे किया, डाउन पेमेंट वाज 10,000, तो वो पे करने पे हमें मिला 27,250। सो स्टार्टिंग में हमने क्या पे किया था, स्टार्टिंग में हमने कैश प्राइस में डाउन पेमेंट पे किया तो 27,250 बचा। फिर इंस्टॉलमेंट में जितना भी कैश प्राइस है वो माइनस करेंगे तो बैलेंस कैश प्राइस मिलेगा। तो अभी अभी कितना पे करना बाकी है, 9544। पर ईयर एंड में एक और चीज हमें निकालना है एंड दैट इज डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रीसिएशन निकालना है। तो 10% फॉर 1 ईयर, 1 ईयर कैसे, जैन टू दिसंबर। सो कितना होगा, 3725। So again it will be the same amount. So it is also called fixed installment method because every year the amount of depreciation will be fixed. इसलिए it is also called fixed installment. ओरिजिनल कॉस्ट क्यों, क्योंकि हमेशा हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट, एक ही आंसर आ रहा है देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी इसलिए बोलते हैं। अब इसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट है, एक डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट, तो ये सबसे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट बोला क्वेश्चन में, तो कितना इंस्टॉलमेंट है, 10,000। बट एक बार मुझे बताओ, हाउ मच इज द बैलेंस कैश प्राइस, बैलेंस कैश प्राइस इज हाउ मच, 9544।
द बैलेंस कैश प्राइस इज 9544 और हमने कितना पे किया, हमने कितना पे किया 10,000, हमने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया 10,000 और हमें लास्ट में कितना पे करना बाकी था 31 दिसंबर 2012 के दिन बैलेंस कैश प्राइस था 9544 और 31/12/2013 को हमने 10,000 पे किया। तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो क्या रहेगा, हमें पे करना था सिर्फ 9,544 बस हमने 10,000 पे किया है। तो जो हमने एक्स्ट्रा पे किया व्हाट इज दैट, हमें पे करना है सिर्फ 9544 क्या बैलेंस कैश प्राइसेस मतलब कार का हमें सिर्फ 9544 ही पे करना बाकी है, फिर भी हमने 10,000 का इंस्टॉलमेंट दिया है। मीन जो हमने एक्स्ट्रा पे किया वो क्या होगा, दैट इज द थर्ड इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट द थर्ड इंटरेस्ट। लास्ट में कैश प्राइस सिर्फ इतना ही बाकी है पर हमने कितना पे किया 10,000 और हाउ डू यू गेट द इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। सो दिस इज हाउ मच 456, दिस इज व्हाट, दिस इज द बैलेंस, दिस इज द बैलेंस। ये कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख लेती हूँ 10,000 माइनस 9544 करेंगे तो हमें मिलेगा 456। लास्ट में कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है बिकॉज यू कैन डायरेक्टली मेक आउट, कैश प्राइस सिर्फ 9544 बाकी है लेकिन फिर भी इंस्टॉलमेंट दिया है 10,000 ना, यहाँ पे तो कुछ भी पे करना बाकी नहीं है, बैलेंस कैश प्राइस इज नील बिकॉज जितना पे करना था हमने पूरा पे कर लिया। 9544 माइनस 9544 अभी कुछ भी बाकी नहीं है कार का पे करने, वी हैव पेड द all the installments, now we do not pay anything further because we have paid everything, we have paid the full cash price, पूरा मोटर कार का अमाउंट हमने पे कर दिया। लेकिन अभी भी डेप्रीसिएशन तो निकालना पड़ेगा। सो डेप्रीसिएशन 31/12/2013 को अगेन हमें क्या निकालना है डेप्रीसिएशन, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो हमें इस हर बार सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन मिलता है, तो इस बार भी इट इज हाउ मच 3725। विद दिस आवर आंसर इज डन। अब इसको टोटल करोगे ना इसको तो आपको मिलेगा 37,250। आप इसको पूरा ऐड करोगे ना 10,000 प्लस 863790699544 you will get 37,250 and ये इंटरेस्ट अमाउंट 1363931,456 को ऐड करोगे ना तो आपको मिलेगा 2750 और ये 10,000 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 40,000। Just see whether you are getting this 10,000 plus 8637 plus 9039 plus 9544 you will get 37,250 and ये इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो यू विल गेट 2750। ये चारों इंस्टॉलमेंट को ऐड करोगे तो यू विल गेट 40,000। With this sum is done.